Hello everyone, welcome to the last lecture of this Unit 6, General Principle and Processes of Isolation of Elements. As we know that in our last lecture, number 9, we start with a NCERT exercise and exemplar, and today we proceeds towards to the remaining portions of this NCERT exemplar starts with 21 number question. So what they ask in these questions, which one of the following reactions occur during calcination, right? So we know that the calcinations is always occur in presence of a limited supply of oxygen or absence of oxygen. So if we carried out the reactions of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide is one of the reason for, so A answer is correct. In the case of B, right, FeS2 reacts with 1/2 mole of oxygen, so there is a supply of oxygen. Same way, in the case of C, you observe that Al2O3 into XH2O, so they are dissociate in such a way that so it's converted into Al2O3 into XH2O, so this water or moisture is released. And last one is ZnS plus 3/2O2, so it's converted into zinc oxide and SO2. So here B and D, both options are connected with oxygen, but A and C are not having a oxygen, so A and C are correct for the calcination option. Number 22. For the metallurgical process of which of the ores calcined ore can be reduced by carbon? Once again, for the metallurgical process, which ore, calcined ore, can be reduced by carbon? So we know that hematite, definitely hematite. Then number 2 is calamine 2. But iron pyrites is FeS2 and sulfurites it's not connecting the oxygen. So A and B both are the correct options in this question. Number 23. The main reactions occurring in blast furnace during extractions of iron from hematite ore. So in 23, you observe that the main reactions is first one Fe2O3 carbon monoxide, and number 2 is the main reactions is CaO SiO2 to CaSiO3. So A and D both are correct in nature. Number 24. In which of the following method of purification metal is converted into its volatile compound and which is decomposed to give a pure metal? So we know that when heating with the stream of carbon monoxide definitely gives the pure metal, and in the case of heating with iodine also gives a pure metal, because in the case of Van Arkel process we use a concept of heating with iodine. Number 25. Which of the following statements are correct? Okay. A depressions prevent certain type of particle to come to the froth. Yes, it's true. Definitely true. Number 25. A is the correct answer. Copper matte contains Cu2s and no, it's wrong. Third one, the solidified copper obtained from Revar battery furnace has blistered appearance due to the evolution of SO2 during the extractions. True. And zinc can be extracted by self-reduction. No, it's wrong, because from ZnO. Okay. So in the case of 25, the both correct answer are A and C. Number 26 is in the extractions of chlorine from brine. Brine means NaCl. So we know that the delta G for the overall reactions is positive in the case of brine, and number C is the E standard for overall reactions as a negative value. So B and C both are the correct option in the case of 26. So now after the completion of MCQ, we proceed towards to the short answer questions. So what are the short answers question? So why is an external EMF of more than 2.2 volt required for the extractions of chlorine from brine? So we know that for the reactions of chlorine to brine, so chlorine to brine is a one type of oxidation reactions. So when 2Cl minus is reacted with a 2 mole of water, so it's converted into the hydroxides H2 and Cl2, and delta G standard for this reaction is plus, so it's a negative value, so it's not a spontaneous reactions, right?
So using the reactions delta G is equal to minus NFE. So if we take a value delta G is equal to plus 422 and convert into Joule, and we know that in this reactions 2 electrons can exchange or 2 electrons can take part in this reaction. So we get a E standard is near about minus 2.18 or is greater than minus 2.18, means minus 2.22 volt. So extractions of chlorine from brine will require an external EMF, means electromotive force is greater than 2.2 volt. Next, question number 28. A temperature above 1073 Kelvin. Coke can be used to reduce FeO2 Fe. How can you justify this reduction diagram, means reductions with Ellingham diagram? So yes, we already know that in the case of Ellingham diagram, at temperature above 1073 Kelvin, we know that the carbon to carbon monoxide curves lie below Fe to FeO curve. So it means that delta GF standard having a more negative value of carbon to carbon monoxide as compared to the Fe to FeO. So therefore coke can reduce FeO to Fe. 29. Wrought iron is the purest form of the iron. Write reactions used for the preparations of wrought iron from cast iron, and how can impurities of sulfur, silicon, phosphorus removed from cast iron. वो हमने पहले पढ़ा हुआ था. ज्यादातर जो क्वेश्चंस बहुत डीप में हो गए, हमने आगे पढ़ लिया होगा या एक या दो बार उसका रिवाइज होगा, तो मैं यहाँ पे इतना आपको बोलूंगा कि आप आगे भी देख लीजिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा. How is copper extracted from low grade copper, वो तीसरी बार हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. Write the two basic requirements for refining a metals by Mond process and by Van Markel, तो वो दोनों हमने पढ़ी हुई है. Although carbon and hydrogen are better reducing agent, but they are not used to reduce metallic oxides at high temperature. Why? तो मैंने इसका भी आपको बोला था कि एट हाई टेम्परेचर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर कार्बाइड और हाइड्राइड बना देते हैं. यानी बहुत हाई टेम्परेचर में कोक भी वो सिलेक्टिव ऑप्शंस मेरे पास नहीं होता है, राइट. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ने कैल्शियम कार्बाइड बना दिया है, और इस तरह से कैल्शियम हाइड्राइड भी वो बना सकते हैं. हाउ डू वी सेपरेट टू सल्फाइड्स और बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड? एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल. ये भी आपको मैं फिर से तीसरी बार समझा रहा हूं, यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं समझा रहा हूं. Two sulfides ore can be separated by adjusting proportions of oil to water, or by using depressions which prevent one type of sulfide ore particles from forming the froth float with the air bubbles. जैसे हमने आपको दिखाया था कि ZNS और PBS होता है, तो इसमें से डिप्रेशन NaCN यूज होता है ताकि वो जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना सके. सो इट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ फ्रॉथ रोटेशन, while PBS forms the froth and hence can be separated from zinc sulfide. 34 नंबर में हमें दिया गया है द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयन इज सेपरेटेड बाय ऑक्सीडाइजिंग impurities फ्रॉम कास्ट आयन इन अ रेवर बैटरी फर्नेसेस. So which iron ore is used to line the furnace, and explain the giving reactions. So as we know that the Rever battery furnace is lined inside with hematite. So it supplies the necessary oxygen required for the carbon to carbon dioxide, sulfur to sulfur dioxide, silicon to silicon dioxide, phosphorus to phosphorus pentoxide, and manganese to manganese oxide. Okay, so we know that Fe2O3 first react with the carbon and is converted into Fe. Same way, Fe2O3 is reacted with sulfur and converted into Fe, and SO2 gas is released. Next, in the question number 35, the mixture of compound A and B pass through a column of Al2O3 by using alcohol as an eluent. So compound A is eluted in the preference of compound B. Which of the compound A or B is more readily adsorbed on the column? हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कंपाउंड A है वो पहले आएगा बिफोर कंपाउंड B, बिकॉज कंपाउंड B इज मोर रेडिली एडसॉर्ब ऑन Al2O3 पैक्ड इन द कॉलम. आपको समझ में आ गया है? ये दोनों है जिसमें उसने अल्कोहल का यूज किया हुआ है. तो कंपाउंड A और B में से किसको ज्यादा, क्योंकि कंपाउंड A ज्यादा होगा क्योंकि वो जो है B का रेडिली एब्जॉर्ब ऑन Al2O3 में होने की वजह से. फिर हम देखेंगे व्हाई इज सल्फाइड्स और ऑफ कॉपर हीटेड इन फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलिका.
तो फेरस ऑक्साइड जो होता है विच इज प्रेजेंट इन द इम्प्यूरिटी इन सल्फाइड और ऑफ कॉपर कंबाइंस विद सिलिका टू फॉर्म अ फेरस सिलिकेट स्लैग। और जो कॉपर होता है विच इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटेट यानी Cu2s और सम अनचेंज FeS, तो वो Fe और सिलिका को फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट 37 में है Why are sulfide ores converted to oxides before reduction? तो उसमें क्या होगा, सल्फाइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड इजीली बट ऑक्साइड्स आर इजीली रिड्यूस्ड। Therefore, to extract metal from sulfide ores, they are first converted into oxide and then reduced with a suitable reagent like coke or carbon monoxide or whatever, right? Next, which method is used for refining zirconium and titanium? We know that the Van Arkel method is the best method for the refining of zirconium and titanium. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है 39 नंबर में, व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो हमें 2 पॉइंट्स है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड 2 पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर सो दैट द प्रॉपर प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। पहला तो हमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स देखना पड़ेगा। इफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद वाटर, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, देन द मेटल्स शुड बी बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है प्यूरिफाइड मोल्टन ऑर्स रादर देन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। So aluminum is extracted by electrolysis of molten alumina. क्लियर हो गया है आपको। फिर दूसरा है suitability of electrodes. The electrodes selected should not react with the product of electrolysis. If at all they react, then the electrode must be made up of a material which is quite cheap, since that periodic replacement should not increase the cost of the process. जैसे हमने एल्यूमिनियम में देखा था कि O2 is liberated at anode. And if Fe or aluminum is made at the anode, so it will attack O2 forming Fe2O3 and Al2O3. So as the anode will be eaten away. But instead of Fe and aluminum, the anodes of carbon are preferred because carbon is much cheaper than Fe and aluminum. So electrolysis of Al2O3 is carried out in an electrolytic tank using carbon as an anode. फिर व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लक्स इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। और द फ्लक्स का तो मैं पूरा एक पॉइंट ही आपको समझाया हुआ था कि एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स किस तरह से हमने वो जो मेटलर्जी में हमने यूज किया था वो सिलिकेट्स के लिए। हाउ आर मेटल्स यूज एज अ सेमीकंडक्टर रिफाइंड एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड यूज। तो हमें मालूम है द मेटल सच एज जर्मेनियम, सिलिकॉन, gallium, etc., which are used as a semiconductors, are purified by Zond refining, and which is based upon the principle that impurities are more soluble in the melt than the solid state of metals. फिर आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। फिर से आपको यहाँ पे दिखाया गया है तीसरी बार इन ब्लास्ट फर्नेस में जो आयन का है 500 to 800 के बीच में, तो आपको जो रिएक्शंस दिखाने होंगे तो वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। वो मैंने आपको पूरा लेक्चर्स भी दिखाया हुआ था। गिव 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। और इसमें जिंक का क्या रोल है, क्योंकि जिंक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका जो रोल है वो भी हमने देखा हुआ था। अभी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ शॉर्ट आंसर, नाउ वी मूव टू द मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दी गई है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड वी हैव टू गिव द करेक्ट कोड, राइट। तो आपको करेक्ट कोड देना है। जैसा पेंडुलम होता है तो हमें मालूम है कि पेंडुलम के लिए मुझे इनवार स्टील का यूज करना पड़ेगा, या हम क्रोम स्टील का भी यूज कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है बी, मेलेकाइट की बारे में बात यहाँ पे बताई हुई है। तो आप देखेंगे पहला जो 45 वाला जो मेरा जो ऑप्शन है मैंने आपको अभी बोला था, तो देखिए ये इसमें क्या पेंडुलम में क्या मुझे निकलना पड़ेगा, निकल स्टील का यूज करना पड़ेगा, राइट। जो दूसरा है मेलेकाइट, तो मेलेकाइट है तो वो CuCO3 into CuOH ट्वाइस का उसका जो फॉर्मूला होता है।
तीसरा जो केलेमाइन बताया हुआ है वो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला है, और क्रायोलाइट तो हमें मालूम है Na3AlF6, यानी आपको तीसरा वाला भी एक बार ढूंढ लेंगे ना तो भी चलेगा, तो यानी मेरा आंसर यहाँ पे बी बॉम्बे आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे पूछा हुआ है कि मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, कलर्ड बैंड्स ऐसा मुझे दिया हुआ है। कलर्ड बैंड्स के बारे में मुझे 46 में यहाँ पे बात की हुई है, तो वो तो क्रोमेटोग्राफी में ही होते हैं, यानी पहला जो मेरा है फोर्थ वाला आ जाएगा। फिर मेरा जो दूसरा वाला है इम्प्योर मेटल टू वॉलेटाइल, वो मोन्ड कार्बोनिल प्रोसेस से होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में वो जोन रिफाइनिंग से होगा, और प्यूरिफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो पाएगा। तो आप देखेंगे तो ए में चौथा वाला है, बी में तीसरा वाला है, सी में पहला वाला है और डी में दूसरा वाला है। तो ऐसा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम यहाँ पे देख सकेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। आपको करेक्ट कोड भी दिखाना पड़ेगा। तो 47 में जैसे हम देख रहे हैं तो पहला वाला है साइनाइड प्रोसेस। तो हमें मालूम है साइनाइड प्रोसेस तो गोल्ड और सिल्वर के लिए ही होगा, यानी इसमें पहले ए में फोर्थ वाला ऑप्शन ये लग रहा है मेरा। फ्रॉथ फ्लोटेशन जब भी होगा तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होगा, ड्रेसिंग ऑफ ZnS होगा, यानी ये आ जाएगा। तीसरा वाला है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस के बारे में वहां पे बात की, तो वो एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में बात हो रही है। और जोन रिफाइनिंग तो हमें मालूम ही है कि अल्ट्रा कोर जर्मेनियम के लिए होगा। तो ये पूरा यहाँ पे ए में मुझे यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड, राइट। आपको सेफायर, स्फेलेराइट, डिप्रेशंस और कोरंडम ये चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि 48 में जो पहला वाला सेफायर है या जो हम बोल सकते हैं उसको, तो हम क्या कहेंगे, उसमें जो कोबाल्ट के बारे में बात हुई क्योंकि इसमें कोबाल्ट के वजह से उसका जो कलर है इम्प्यूरिटीज है। दूसरा है स्फेलेराइट, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो ZnS है। तीसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो डिप्रेशन, तो आप एक को पकड़ लेंगे तो वो डिप्रेशन तो सोडियम साइनाइड ही हो रहा है, यानी जो सी हमेरा है वहां पे तो दूसरा ही आंसर आ रहा है, यानी मेरा जो यहाँ 48 नंबर में अभी ए ऑप्शन चल रहा है, राइट। कोरंडम आप देखेंगे तो वो Al2O3 के लिए बोला जा रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे 49 नंबर में मुझे दिया गया है कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड, यानी मुझे कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ना पड़ेगा। ब्लिस्टर्ड कॉपर के बारे में मुझे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ब्लिस्टर्ड कॉपर तो यहाँ से मिलेगा क्योंकि उसमें से SO2 के जो बबल निकलेंगे उससे ब्लिस्टर हो जाएगा, यानी ए में मेरा दूसरा आ गया है, यानी मेरा ये ए ऑप्शन शुरू हो रहा है। फिर भी हम देखेंगे कि उसका कंप्लीशन अच्छी तरह से सक्सेसफुली हो रहा है। यह जो ब्लास्ट फर्नेस वो तो आयन के लिए यानी हो गया है। रेवर बैटरी प्रोसेस आप देखेंगे तो वो Cu2S का रेवर बैटरी प्रोसेस में ये प्रोसेस है, ये भी है। हेल हेराल्ड वो एल्यूमिनियम के लिए है, तो बिल्कुल सही है। तो 49 नंबर में मेरा जो आंसर है यहाँ पे कोड ए में यहाँ पे ये मिल सकता है। फिर मुझे यहाँ पे दिखाया गया है एसर्टेशंस एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे डाले हुए हैं। नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस यहाँ पे उसने लगाए हुए हैं, तो हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कई बार यहाँ पे ऑप्शंस को या इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बोथ एसर्टेशंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। Both assertions and reasons are true, but reason is not the correct explanation of assertions. Assertions true है, reason false है, D में false assertion है, reason true है, और लास्ट में दोनों wrong है। चलो शुरू करते हैं। Nickel can be purified by Mond process, सही है, assertion तो सही है। NiSO4 is a volatile compound which decomposes at 460 Kelvin to give pure nickel, तो ये भी सही है, यानी बोथ एसर्टेशंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट, यानी इसमें ए आंसर आएगा। 51 में आप देखेंगे तो जर्कोनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय वन आर्केल, सही है। जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड इज वॉलेटाइल एंड डीकंपोज, ये भी सही है, यानी इसमें भी ए आएगा आंसर। 52 में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है 52 में
तो आप देखेंगे सल्फाइड ओर्स आर द कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो सही है। क्रेसोल स्टेबिलाइज द फ्रॉथ इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए ये 52 वाला जो हमें रीजंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमें मालूम है कि सल्फाइड ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑल एंड बिकम लाइटर and thus rise to surface along with the froth flotation, while gain particles are preferentially weighted by water and become heavier and settle down at the bottom of the tank. यानी 52 वाला जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन दोनों का रिलेशंस नहीं है एक दूसरे के साथ, ऐसा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यानी इसमें 52 में आंसर क्या आएगा? बी। 53 वाला हमें दिया गया है कि जोन रिफाइनिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर। सही है, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ हाई प्यूरिटी, लेकिन दोनों का इतना जो रिलेशंस होना चाहिए वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे बी ही होगा, क्योंकि जोन रिफाइनिंग मेथड में मेल्ट allowed to crystallize and impurities are more soluble in the melt than in the pure state of the metal. So ultra pure semiconductor metals are obtained after repeated crystallizations, right? 54 में यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आप देखिए हाइड्रोमेटलर्जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और इसका रीजन भी हम देखेंगे। हाइड्रोमेटलर्जी जो यहाँ पे दिखाई गई है involves dissolving the ore in the suitable reagent followed by precipitations by a more electropositive metal. सही है। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, नहीं ये रॉन्ग है। तो 54 में हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा, लेकिन उसका करेक्ट रीजन क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर नहीं, ओनली लो ग्रेड कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी while copper is bulk quantities is prepared by pyrometallurgy। तो ये इसमें आंसर मुझे मिल सकता है। तो ये एसर्टेशन रीजन के बाद अब हम लॉन्ग आंसर की तरफ, जो एक क्वेश्चन हमें लॉन्ग आंसर का दिया हुआ है तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट नंबर 6। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पूरा पढ़ा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिलो 710 वेयर कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अबाउट 710। वो एलिंगम डायग्राम से हम बता सकते हैं। जनरली सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन, वो भी हमने पता है। सिलिका इज एडेड टू द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इन द रेवरबेटरी फर्नेस। तो हमें मालूम है ना कि सल्फाइड ओर में कॉपर कंटेन्स आयन एज ए इम्प्यूरिटी, तो वो जो आयन की इम्प्यूरिटी निकालने के लिए मुझे SiO2 का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ही वो Fe है वो फेरस सिलिकेट में चला जाएगा। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। तो मुझे मालूम है कि द रीजन बीइंग दैट द कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल्स एट हाई टेम्परेचर, दे फॉर्मिंग देयर कार्बाइड्स एंड हाइड्रेट्स रिस्पेक्टिवली। और लास्ट वन वाला यहाँ पे दिया हुआ है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ टिटेनियम। यस डेफिनेटली, टिटेनियम जो आयोडीन के साथ 523 केल्विन के साथ रिएक्ट करके वो वॉलेटाइल TiF4 यानी टिटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनाएंगे एंड विच डीकम्पोज हायर टेम्परेचर मींस मोर देन 1700 केल्विन पे वो प्योर टिटेनियम की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो पूरा हमने आज देखा वो है विच इज अ लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स इन प्रोसेसेस ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके साथ ही हमारा जो ये यूनिट का जो क्वेश्चंस आंसर था, जो हम बेसिक प्रोग्राम लेके चल रहे थे कि पहले हम जो भी पूरी थियरी है उसको पूरी डिटेल से पढ़े, बाद में NCERT के जो इंटेक्स सोल्ड क्वेश्चंस, इसके बाद में अनसोल्ड क्वेश्चंस, उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज NCERT की, और बाद में एग्जाम्पलर पढ़ने के बाद या एग्जाम्पलर का सॉल्यूशंस करने के बाद जैसे हम लाइव लेक्चर में मिलते हैं तब हम जो हमारी जो फिर MCQs की जो प्रैक्टिस है या हमने जो आपको MCQs दी हुई है उसकी एक प्रिपरेशंस करते हैं। वो MCQs में फिर से जो गुजरात स्टेट बोर्ड की MCQs या कुछ ऐसी पूछी गई है तो उसके बारे में, गुजकेट के बारे में, उसके बाद जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और JEE नीट की जो एग्जामिनेशंस है तो वो जो MCQs हम सोल्व करके पूरा जो चैप्टर है उसका जो यहाँ पे जो पूरा निचोड़ हम ले आते हैं, और बाद में जैसे जैसे जो भी स्टूडेंट्स है वो USS का भी सॉल्यूशंस हम बारी बारी करते हैं ताकि जो पूरा चैप्टर है वो आपके 360 डिग्री व्यू में आ सके।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।